Jai Hind and good morning, children. In this video, we will discuss about some important chemical properties of group 15 elements. Okay, so welcome to my next video. At first, let us concentrate upon the oxidation state of group 15 elements. Nitrogen forms N3 minus nitride ion with -3 oxidation state. The gain of 3 electrons is quite difficult, but since nitrogen has small size and high electronegativity, it can easily form -3 ion. Secondly, N3 minus ions react with highly electropositive elements and they form compounds like magnesium nitride, calcium nitride, etc. Besides -3, nitrogen also shows an oxidation state of -2 in hydrazine. Phosphorus also shows an oxidation state of -2 in diphosphine. Nitrogen even shows oxidation state of -1 in hydroxylamine, but phosphorus does not able to show -1 oxidation state. All elements of this group, since they have 5 electrons in their outermost shell, show positive oxidation states of +3 and +5, but the stability of +5 oxidation state decreases down the group due to inert pair effect. So as we move down the group, we will see the stability of +3 oxidation state is more than +5. Further, all the compounds of group 15 elements having oxidation state +5 are essentially covalent. They are covalent in nature, like PF5, PCl5. Compounds with +3 oxidation state can show covalent as well as ionic, but BiF3, bismuth trifluoride, is essentially ionic. The covalent character decreases. The covalent character decreases down the group. Like nitrogen, due to its small size, form most covalent element, and as it decreases down the group, the covalent character of the compounds decreases. Then nitrogen does not possess d orbital. Nitrogen does not possess d orbital. Hence, its valence, the covalency, you can say, the covalency of nitrogen is maximum +4. It cannot form compounds like NF5 or NCl5 because it cannot extend its covalency beyond 4. Although phosphorus have empty d orbitals, hence it can extend its covalency up to 5, so it can show compounds like PCl5, AS5, etc. All oxidation states of nitrogen from +1 to +4 show disproportionation. Children, disproportionation का मतलब होता है जब एक ही एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइज भी करता है और रिड्यूस भी करता है. जैसे यहाँ पे HNO2 जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट होके HNO3 और NO2 में बदल रहा है. तो यहाँ नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग. सिमिलरली phosphorus in all its intermediate oxidation state from -3 to +5 show disproportionation. However, a very important point, inert pair effect has the stability of +3 oxidation state increases from arsenic to bismuth. ये बार बार हम उसी बात पे आ रहे हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है और इस वजह से कई सारे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो कि नीचे की तरफ के ग्रुप्स में मिलते हैं, जैसे बिस्मथ वगैरह के कंपाउंड्स हैं, उनका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स मुश्किल से मिलते हैं और +3 वाले जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं. नाउ इफ़ यू मूव टूवर्ड्स द ट्रेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट तो दे फॉर्म हाइड्राइड्स बनते हैं. किस तरह के हाइड्राइड्स और उनकी प्रॉपर्टी हम थोड़ा सा देखेंगे. यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के साथ ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबिन और बिस्मथीन जैसे हाइड्राइड्स बनते हैं. इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो N2H4 टाइप का हाइड्राइड भी बनाता है. इस नाइट्रोजन ऑल्सो फॉर्म्स अ वेरी स्पेशल हाइड्राइड HN3 जिसको क्या कहते हैं, हाइड्राजोइक एसिड.
ऑल NH3 और EH3, E यहाँ पे हमने ग्रुप 15 का एलिमेंट माना है तो जनरल EH3, सभी ग्रुप 15 के जो EH3 टाइप के हाइड्राइड्स हैं दे विल हैव हाइब्रिडाइजेशन sp3 शेप टेट्राहेड्रल। द स्टेबिलिटी, अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो ऐसे थर्मल स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज़ करती है। क्यों डिक्रीज़ करती है? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ ऊपर से नीचे कम होगी, क्योंकि साइज सेंट्रल एटम की बढ़ेगी तो बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा और इस वजह से स्टेबिलिटी जो है ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है। यही वजह है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, क्योंकि EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करी, H का रिलीज जो है वो आसान है। ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन इंक्रीजेस। EH बॉन्ड एंथैल्पी के कम होने की वजह से H का निकलना आसान हो जाता है। इस वजह से रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका ग्रुप में जब हम नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। मूविंग फर्दर, बेसिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट पोजेसेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, और इस वजह से वो लुईस बेसेस हैं, सभी के पास लोन पेयर होता है इसलिए वो लुईस बेसेस है। लेकिन ये जो बेसिक कैरेक्टर है ये ग्रुप में ऊपर से नीचे घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस और लोन पेयर तो सबके पास एक एक ही है। सेंट्रल मेटल का साइज बढ़ने से क्या होगा कि चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, सेंट्रल मेटल की साइज बढ़ जा रही है और इलेक्ट्रॉन सबके पास दो इलेक्ट्रॉन है यानी एक लोन पेयर है। तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड हेंस द बेसिक कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा इस ग्रुप में। सबसे हाई इन द सेंस फॉस्फीन और आर्सीन से हाई होगा, हालांकि स्टेबिन और बिस्मथीन से कम होता है, लेकिन एक्सेप्शनली हाई है अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वी नो दैट नाइट्रोजन कैन एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इसका जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसकी वजह से नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली हाई हो जाएगा। फर्दर जब हम नीचे आएंगे फॉस्फीन से आगे बढ़ेंगे, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टेबिन एंड बिस्मथीन, तो मॉलिकुलर मास सेंट्रल एटम का बढ़ेगा। मॉलिकुलर मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डेर वाल फोर्स, और वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो जो ट्रेंड यहाँ होता है, सबसे कम फॉस्फीन, फिर उससे ज़्यादा आर्सीन क्योंकि मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है, फिर अमोनिया आ जाता है, एक्सेप्शन है बीच में ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उससे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका स्टेबिन का है और सबसे हाई यहाँ बिस्मथीन का है। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स की, तो मेल्टिंग पॉइंट में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको दिखेगा अमोनिया का। डेटा यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि फॉस्फीन का लोएस्ट है, फिर उससे पर आर्सीन है, फिर स्टेबिन है, फिर बिस्मथीन है, और सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉलिबिलिटी भी अमोनिया की ग्रुप में ज़्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू अदर हाइड्राइड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। बॉन्ड एंगल की अगर बात की जाए हाइड्राइड्स की, तो बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे आपको जैसे जैसे हम नीचे आएंगे बॉन्ड एंगल आपको कम होता दिखेगा। बिस्मथ में लगभग 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, अमोनिया में 107.8 का बॉन्ड एंगल है। वजह इसकी ये है, बॉन्ड एंगल क्यों कम होगा? बॉन्ड एंगल इसलिए कम होगा क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो यहाँ भी वही बात है, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ कम होगी। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है, और इस वजह से जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो दे विल स्लाइटली रिपल्शन जो होगा बॉन्ड पेयर्स का, दैट विल बी लिटिल बिट मोर एंड देयरफॉर द बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट इन NH3. द बॉन्ड पेयर्स विल बी
due to this high electronegativity in ammonia, what happens, bond pair will be towards nitrogen, नाइट्रोजन अपनी तरफ बॉन्ड पेयर को खींच लेगा और रिपल्शन वहाँ पर जो है, जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की हम बात करते हैं VSEPR थ्योरी में, वो ज़्यादा होगा और इस वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल जो है वो आपका हाई हो जाएगा, जबकि इन अदर केसेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी, इस वजह से बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज़ होगा। फर्दर ये हो गई हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी की बात, हाइड्राइड्स की बात। अब हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की। अगर रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से हम देखें तो दो तरह के ऑक्साइड जनरली बनते हैं। नाइट्रोजन इकलौता ऐसा है एलिमेंट इसमें जो कि 5 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन में पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग की एबिलिटी है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, तो ये 5 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। बाकी कोई भी और एलिमेंट इतने ऑक्साइड्स बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। इट इज़ ओनली नाइट्रोजन विच कैन फॉर्म डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। 5 तरह के ऑक्साइड्स यहाँ नाइट्रोजन के केस में बनते हैं। अगर हम एसिड्स की यहाँ पे ऑक्साइड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लें तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो जनरली हमें पता है एसिडिक होते हैं। दोज ऑफ मेटलॉइड्स आर एम्फोट्रिक वाइल दोज ऑफ मेटल्स आर बेसिक। फर्दर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट मोर एसिडिक इज़ द ऑक्साइड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एसिडिटी ऑक्साइड की उतनी ही बढ़ेगी। जो मेटल जिससे ऑक्सीजन जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्साइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर कुछ कंपेयर हम करें, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में हम करें तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज़ मोस्ट एसिडिक और इनफैक्ट N2 और NO न्यूट्रल होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ट्राईऑक्साइड्स की एसिडिटी अगर हम देखें तो नाइट्रोजन इज़ मोस्ट एसिडिक, फिर उसके बाद फॉस्फोरस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल मेटल की कम हो रही है एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है। इवन पेंटाऑक्साइड्स में भी यही क्राइटेरिया हम लगा रहे हैं। अच्छा, ये अब अगर हम आगे बढ़ें और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात करें तो 2 तरह के हैलाइड्स यहाँ बनते हैं, ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स बनते हैं और पेंटा हैलाइड्स बनते हैं। EX3 और EX5 टाइप के हैलाइड्स बनेंगे। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि नाइट्रोजन जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये स्पेशली अमोनिएट्स बनाता है, डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाता है। NBr3.NH3, Ni3.NH3, इसको अमोनिएट्स कहा जाता है। इस तरह के अमोनिएट्स का फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन। बाकी एलिमेंट्स प्रॉपरली अपने ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। और यहाँ पर नीचे कुछ पेंटाहेलाइड्स है। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड कभी भी नहीं बना पाएगा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स नहीं बना पाता है। और दूसरी बात की क्योंकि कोवैलेंसी एक्सटेंड ही नहीं कर पाएगा 4 से ज़्यादा, तो 5 तो बनाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए नाइट्रोजन के अलावा बाकी कुछ एलिमेंट्स जो हैं हमारे पेंटाहेलाइड्स यहाँ बनाते हैं। बॉन्ड एंगल ऑफ ट्राईहेलाइड्स। अब ट्राईहेलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं। बॉन्ड एंगल ऑफ ट्राईहेलाइड्स ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन इंक्रीजेस। बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन का जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ट्राईहेलाइड्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट विथ आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग। ज़्यादातर ट्राईहेलाइड्स हमारे कोवैलेंट होते हैं लेकिन उनका आयनिक कैरेक्टर जो है ऊपर से नीचे बढ़ता है, जैसे BiF3 आपका प्रीडोमिनेंटली आयनिक हो जाएगा। ऑफ ऑल ट्राईहेलाइड्स नाइट्रोजन इज ट्राईहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो लीस्ट स्टेबल हैं। हालांकि NF3 स्टेबल होता है, उसके ऊपर NBr3, Ni3 ये सब अनस्टेबल हो जाते हैं। रीज़न ऑफ अनस्टेबिलिटी ये है कि NX बॉन्ड जो नाइट्रोजन हैलाइड बॉन्ड है वो ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइज़, NX बॉन्ड का जो ये साइज़ जैसे जैसे बढ़ता रहेगा हैलोजन का, ये बॉन्ड वीक होता रहेगा और इस वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी काफ़ी कम हो जाएगी। NCl3 ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। NCl3 बहुत इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है जबकि NF3 नहीं होता है। यहाँ रिएक्शन भी मैंने आपको दिया हुआ है, वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनिया और HClO बनाता है। लेकिन NF3 इज स्टेबल बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ NF बॉन्ड, काफ़ी दोनों की साइज़ छोटी होती है तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसलिए यह हाइड्रोलाइज नहीं होगा, जबकि NCl3 ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा।
फर्दर ट्राई हेलाइड्स जो हैं, अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो वो सभी ट्राई हेलाइड्स जो हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल दे एक्ट्स एज लुईस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। इनका एसिडिक कैरेक्टर जो है इस तरह से डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। अगर मतलब जैसे जैसे हम हैलोजन की साइज़ बढ़ाते जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर इनका डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है इस वजह से। ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये तो लुईस एसिड्स हो गए। नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स जो हैं वो लुईस बेसिस की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ये डोनेट कर सकते हैं। द लुईस बेस स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन एटम डिक्रीजेज। तो ये बेस स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता है जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। द लुईस बेस स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, इनकी जो लुईस बेस स्ट्रेंथ है यानी कि जो बेसिसिटी है वो बढ़ जाएगी एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन डिक्रीजेस। मतलब जैसे ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है तो Ni3 इज़ मोस्ट बेसिक, उससे कम NBr3, फिर NCl3 और सबसे कम NF3। तो ये हो गई ट्राई हैलाइड्स की बात। पेंटा हैलाइड्स की अगर हम बात करें नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन तो पेंटा हैलाइड बनाता ही नहीं है क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता उसके वैलेंस शेल में। बाकी पेंटाहेलाइड्स जो है वो बनते हैं और अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल पेंटाहेलाइड्स जो हैं वो लेस पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्राईहेलाइड्स, क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो उनकी कोवेलेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जानते हैं फजान्स रूल ये कहता है हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर कोवेलेंट इज़ द मॉलिक्यूल। तो पेंटाहेलाइड्स दे आर मोर कोवेलेंट। ज़्यादातर पेंटाहेलाइड्स जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री शो करते हैं। दे आर थर्मली लेस स्टेबल, पेंटाहेलाइड थर्मली लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इनकी जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है और +3 की बढ़ती है। ऑल पेंटाहेलाइड्स दे एक्ट एज लुईस एसिड्स बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। जितने पेंटाहेलाइड्स बनते हैं वो सभी लुईस एसिड्स हैं बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल वेयर दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल्स की हम बात करें, जब नाइट्रोजन जो है वो मेटल से रिएक्ट करता है, ग्रुप 15 एलिमेंट मेटल से रिएक्ट करता है, दे form specific binary compounds. They form specific binary compounds like Ca3N2, Ca3P2, Na3S, Zn3, Sb2, जिंक स्टिबाइड बोलते हैं, मैग्नीशियम बिस्मथाइड बोलते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स। क्योंकि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो वो थोड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं, इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज वाले जो मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके कुछ स्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज़ द जनरल discussion of the chemistry of group 15 elements. I hope you can understand these points. Okay, thank you children.